Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Hello everyone, today we are starting chapter 11 P block elements of class plus 1. So first of all, what are P block elements? P block elements है क्या? Those elements in which last electron will enter into p atomic orbital of outermost shell are called p block elements. इसके बाद जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के पी एटॉमिक ऑर्बिटल में एंटर करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, तो पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आएंगे? इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 13 to 18 और इसमें मेनली क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। द जनरल outermost shell electronic configuration of p block elements, इस पूरे ब्लॉक की जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है दिस इज ns2 np126. This is ns2 np126 where n stands for the outermost shell. n जो है आउटरमोस्ट शेल को स्टोर कर रहा है। If n value is 2 then 2s2 2p126. ठीक है, so here n stands for outermost shell. अब यदि हम यहाँ p ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ें तो हमारे पास टोटल इसमें 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 13 to 18, लेकिन प्लस 1 के अंदर हम दो ही ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14. All these groups have some special name based upon the first element of every group. ग्रुप 13 में फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है, that's why it is called boron family. ग्रुप 14 में फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, it is called carbon family. ग्रुप 15 में फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, it is called nitrogen family. ग्रुप 16 में फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, that is called oxygen family. ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका स्पेशल नेम है, these are called halogens. एंड ग्रुप 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, तो उसका एक स्पेशल नेम है दैट इज कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस. लेकिन प्लस 1 में हमने ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 केवल दो ही स्टडी करने हैं. सो सबसे पहले हम बात करके चलते हैं ग्रुप नंबर 13. ग्रुप नंबर 13, the first member is boron, that's why it is called boron family. अब इसमें हमारे पास टोटल जो हैं 5 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट इज बोरॉन, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड Ga is known as gallium, fourth is iron is known as the indium, and the last one is Tl is known as thallium. So boron, aluminium, gallium, indium, thallium. The atomic number of boron is 5 and its ground state electronic configuration is 1s2 2s2 2p1. Atomic number of aluminium is 13 and its ground state electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Gallium 31 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d10 for p1, indium 49, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p1, and this is 81 thallium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, that is 6p1. अब यदि हम यहाँ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल को मार्क करें तो वी नो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल. तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है 2. सो जो सेकंड शेल है दिस इज आउटर मोस्ट शेल, इसमें थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसमें फोर्थ शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसमें फिफ्थ और इसमें सिक्स्थ. अब आउटर मोस्ट शेल को यदि हम n अक्षर से शो करते हैं तो n अल्फाबेट से शो किया तो ये क्या होगा ns2 np1, ns2 np1. इसमें भी गैले में भी क्या होगा ns2 np1. यदि 4 की बजाय शो कर रहे हैं या 5 की बजाय कर रहे हैं ns2 np1. ns2 np1. So we are observing that the general outermost shell electronic configuration of group 13 element is ns2 np1. This is general outermost shell electronic configuration of group 13 elements, which is also called boron family. क्या है ns2 np1. और जब हम इसे बॉक्सेस की तरह शो करते हैं we know S subshell has only one atomic orbital, P subshell has 3 atomic orbitals. So ns2 S atomic orbital should have 2 electron और np1 में ये. So this configuration is which type of configuration? It is partially filled electronic configuration. So all the group 13 elements have partially filled electronic configuration. Okay. Next topic is periodic properties of group 13 elements. Group 13 elements बोरॉन फैमिली है. इसकी periodic property फर्स्ट पॉइंट है that is atomic radius. एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. So we know as we move down the group, the number of shells will increase, and if the number of shells will increase, then the distance between center of nucleus and outermost shell will increase, and therefore atomic radius should increase. It means we expect that atomic radius of boron should be least and thallium should be most. यानी कि बोरॉन से एल्यूमिनियम तक, उस बोरॉन से थैलियम तक एटॉमिक रेडियस कंटीन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए. वी एक्सपेक्ट दैट atomic radius must increase from boron to thallium. होना ये चाहिए, but there are some exceptions. यहाँ exceptions हैं. क्या exceptions हैं? The first exception is this is a question: why atomic radius of gallium
is less than that of aluminium. कि गैलियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम क्यों है, एक ये क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज इंडियम और थैलियम में हम एक्सपेक्ट करते हैं होना किसका चाहिए एटॉमिक रेडियस ज्यादा, इन थैलियम का, बट द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई atomic radius of thallium is less than that of indium, कि थैलियम का एटॉमिक रेडियस इंडियम से कम है। अब ऐसा क्यों? Whenever we observe the electronic configuration of aluminium and gallium, then in case of aluminium you are observing 1s2 2s2 2 pieces 3s2 3p1, but in case of gallium 1s2 2s2 2 pieces 3s2 3 pieces 4s2 3d10 4p1। आप जरा ऑब्जर्व कीजिए एल्यूमिनियम के अंदर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हैं सिर्फ s सब शेल के और p सब शेल के, भले 1 है 2 है 3 है जो है, लेकिन गैलियम में क्या है, यू आर ऑब्जर्विंग 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3d एटॉमिक ऑर्बिटल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करें एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इन केस ऑफ गैलियम, गैलियम में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3d atomic orbitals which show poor shielding effect, और इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 3 देयर इज अ टर्म नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम जेड स्टार से भी शो करते हैं। इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज जेड माइनस शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को सिग्मा से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला जाता है, जेड स्टार निकालने का फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड क्या है न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्विवेलेंट है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स किसके इक्विवेलेंट है एटॉमिक नंबर के। तो यदि मैं एल्यूमिनियम और गैलियम का कंपैरिजन करता हूं, एल्यूमिनियम गैलियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, गैलियम का 31। सो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है हमारे पास, गैलियम का। प्रोटॉन्स ज्यादा किसमें होंगे, गैलियम में, और न्यूक्लियर चार्ज भी किसमें ज्यादा होगा, गैलियम में। इट मींस गैलियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। माइनस शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, द रिपल्शन कॉज्ड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और आपने यहां देखा गैलियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3d एटॉमिक ऑर्बिटल विच शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम है। सो 3d की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम है। सो आप जानते हैं यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, सो दोनों ही फैक्टर जो हैं इट विल इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार को बढ़ाएंगे, क्योंकि जेड स्टार क्या है, डिफरेंस है। यदि जेड वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तब भी जेड स्टार बढ़ेगा, और सिग्मा वैल्यू जितनी कम होगी तब भी जेड स्टार बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं गैलियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3d एटॉमिक ऑर्बिटल विच शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसी वजह से जेड स्टार की वैल्यू गैलियम में ज्यादा हो जाएगी। Therefore, the value of effective nuclear charge will be more in case of gallium than that of aluminium। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, forces of attraction between nucleus and outermost shell that will become stronger and stronger. As a result, the forces of attraction between nucleus and outermost shell
will become stronger. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, तो हम ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस जो है फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ड्यू टू दिस the distance between center of nucleus and force of attraction between nucleus and electrons present in outermost shell. Due to this, the distance between center of nucleus and outermost shell will decrease. और डिस्टेंस डिक्रीज होगा, therefore atomic radius will decrease. Therefore atomic radius will decrease. atomic radius है वो भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. And hence we can say the atomic radius of gallium is less than that of aluminium. गैलियम का एटॉमिक रेडियस इसी वजह से एल्यूमिनियम से कम होगा. अब हम सेकंड केस लेते हैं. इन केस ऑफ इंडियम एंड थैलियम, जब हम इंडियम एंड थैलियम का केस पढ़ते हैं, देन विट वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, चेक कीजिएगा. इन केस ऑफ इंडियम द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज 1s to 2s to 2p6, 3s to 3p6, 4s to 3d10 4p6, 5s to 4d10 5p1. यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन किसमें पड़े हैं, सिर्फ 4d में. जबकि थैलियम में क्या है, 1s to 2s to 2p6, 3s to 3p6, 4s to 3d10 4p6, 5s to 4d10 5p6, 6s to 4 है, 14 5d10 6p6 6p1. तो यहाँ 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है और 5d में 10. तो अब यहाँ इन दोनों का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इन दोनों का ही, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स इन 4f atomic orbital and 10 electrons in 5d atomic orbitals, they show poor shielding effect. So in case of thallium, 14 electrons in 4f atomic orbital and 10 electrons in 5d atomic orbital, they show poor shielding effect. They show poor shielding effect. Due to this, effective nuclear charge of thallium will become greater than effective nuclear charge of indium. थैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंडियम से ज्यादा हो जाएगा. और अभी आपने पढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ेगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर, और फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज. एंड एज ए रिजल्ट सीधा लिख सकते हैं, एंड एज ए रिजल्ट एटॉमिक रेडियस of thallium become lesser than atomic radius of indium. So actual order of atomic radius इस ग्रुप 13 में क्या आएगा, बोरॉन सबसे कम, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम गैलियम. होना क्या चाहिए, एल्यूमिनियम ज्यादा गैलियम ज्यादा, लेकिन उल्टा है यहाँ पर. सो गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम है, एल्यूमिनियम ज्यादा. उसके इंडियम और थैलियम में है, होना क्या चाहिए, थैलियम ज्यादा, लेकिन उल्टा है, थैलियम इंडियम. सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स. वी नो whenever we move across the period from left to right, the number of shells remains same, but atomic number, protons as well as nuclear charge will increase. Due to this, the forces of attraction between
nucleus and electrons present in outermost shell, these forces will become stronger and atomic radius will decrease. So group 14 elements have smaller atomic radius than that of group 13 elements. So group 14 का atomic radius group 13 से कम है. Second point, ionization energy. We know what is ionization energy? It is the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. And ionization energy of any element is inversely proportional to atomic radius. So we expect that ionization energy must decrease from boron to thallium. कि बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम, इंडियम से थैलियम जाते समय एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए. इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? बोरॉन की, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए? थैलियम की. बट देयर इज आल्सो ए वेरिएशन. यहां भी वेरिएशन है कि यदि हम एल्यूमिनियम और गैलियम का केस लेते हैं तो होना क्या चाहिए? गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से कम होनी चाहिए. बट द क्वेश्चन इज why I1, first ionization energy of gallium, is more than that of aluminium. कि गैलियम के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों है? सेम में से इंडियम और थैलियम में से थैलियम की कम होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी. बट द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थैलियम इज मोर देन that of indium. The answer is same. We know ionization energy is inversely proportional to atomic radius. और अभी आपने पढ़ा कि जब हम गैलियम और एल्यूमिनियम का केस करते हैं, then in case of gallium 10 electrons are present in 3d atomic orbital which show poor shielding effect. As a result, effective nuclear charge will become more in case of gallium. और effective nuclear charge बढ़ेगा तो क्या होगा? The forces of attraction between nucleus and electrons present in outermost shell, this will become stronger in case of gallium. और हम जानते हैं यदि forces strong होंगी तो outermost shell से electron निकालना difficult. As a result, the removal of electron from the outermost shell will become difficult in case of gallium than that of aluminium. और यदि removal of electron difficult हो जाएगा, then ionization energy will also become more. So therefore, first ionization energy of gallium is more than that of aluminium. And second question जो हमारे पास थैलियम और इंडियम का है, वही सेम केस बताएंगे. इन केस ऑफ थैलियम 14 electrons are present in 4f atomic orbital and 10 electrons are present in 5d atomic orbitals and both show poor shielding effect. Due to this, effective nuclear charge will become stronger. Effective nuclear charge will become more in case of thallium. As a result, forces of attraction between nucleus and electrons present in outermost shell, they will become stronger in case of thallium. और यदि forces strong होंगी, then the removal of electron from outermost shell will become difficult in case of thallium and more amount of energy is required for the removal of electron, and therefore first ionization energy of thallium is more than that of indium. So अब यहां पर यदि हम ट्रेंड देखें तो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? Actual order of first ionization energy in group 13 elements, हम जानते हैं डिक्रीज होना चाहिए. तो सबसे ज्यादा बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम में से होना क्या चाहिए? एल्यूमिनियम ज्यादा होना चाहिए, गैलियम कम, लेकिन उल्टा है, गैलियम एल्यूमिनियम. ऐसे इंडियम और थैलियम में से यदि देखें तो हमारे पास इंडियम ज्यादा होना चाहिए और थैलियम कम, लेकिन उल्टा है, थैलियम इंडियम. सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स. So whenever we move across the period from left to right, we know ionization energy of element will increase. So first ionization energy of
group 14 elements is more than first dimension energy of group 13 elements. ऐसा क्यों? ड्यू टू स्मॉलर साइज स्मॉल है, एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. The third periodic property, this is electronegativity. What is electronegativity? The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself. This is called electronegativity, and electronegativity of any element is always inversely proportional to atomic radius. So as you move down the group, atomic radius generally increases, so electronegativity generally decreases, and as you move across the period, atomic radius generally decreases, and electronegativity of element will generally increase. So therefore group 14 elements are more electronegative than that of group 13 elements. So group 14 elements की electronegativity group 13 से ज्यादा है. ऐसा क्यों? ड्यू टू smaller atomic radius. Next point is density. We know density is equal to mass per unit volume. So हमारे पास जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीज, बट उसके साथ साथ क्या है, एटॉमिक मास है वो भी इंक्रीज करता है. तो डेंसिटी एटॉमिक मास पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट विल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम. द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स विल इंक्रीज फ्रॉम boron to thallium due to increase in atomic mass, क्योंकि atomic mass बढ़ेगा. और यदि हम ग्रुप 13 का ग्रुप 2 से कंपैरिजन करें तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस जो है ग्रुप 2 से कम है. एटॉमिक रेडियस कम है तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फैक्टर कम हो जाएगा ग्रुप 13 का, और वॉल्यूम फैक्टर कम होगा वो भी डेंसिटी को बढ़ाएगा. And density of group 13 elements is more than that of group 2 elements due to smaller atomic radius. एटॉमिक रेडियस कम है एंड हायर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ज्यादा है, तो यहां दोनों ही फैक्टर डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे. द फिफ्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, दैट इज electropositive or metallic reactor. We know electropositive or metallic reactor
comes from the two words electro plus positive. इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव का मतलब केटायन बनना. If an element has tendency to lose the electron and it can easily convert into cation, then this character is called electropositive character or it is also called metallic character. So ये किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रॉन लूज करना. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे क्या बोलते हैं? आयनेशन एनर्जी. यदि आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट, इसका मतलब लेस मेटेलिक या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और यदि आयनेशन एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, इसका मतलब मोर मेटेलिक या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी. और दूसरी तरफ कहें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. और जनरली क्या होता है? एज यू मूव डाउन द ग्रुप, atomic radius generally increase or ionization is generally decrease. So both the factor will increase the electropositive और metallic character. इसका मतलब metallic character increase होना चाहिए. metallic character increase होना चाहिए और पीरियड के अंदर atomic radius decrease, ionization energy increase, तो ये दोनों ही फैक्टर electropositive character को घटाएंगे. Group 13 elements are less electropositive than group 2 elements due to their smaller size and higher value of sum of first three ionization energies. इसका मतलब क्या है? sum of first three ionization energies. हम जानते हैं कि इनके आउटरमोस्ट शेल में, ग्रुप 13 वालों में आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2 np1. It means they are having 3 electron in their outermost shell. सो इन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ये एक ही साथ तीनों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड, देन थर्ड. सो उसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज I1. सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसके लिए I2. थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करना है I3. तो इन तीनों का सम यानी कि टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, इट्स वैल्यू इज हायर. इसकी वैल्यू क्या है? हायर है देन दैट ऑफ ग्रुप 2. ग्रुप 2 वालों से इनकी वैल्यू हायर है. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा? डिफिकल्ट. और इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट, इट मींस दे आर लेस मेटेलिक. सो इसी वजह से जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स. अब बात आती है कि जब हम पीरियड के ग्रुप के अंदर बॉटम में मूव करते हैं, हम जानते हैं इस ग्रुप के अंदर 5 मेंबर्स हैं: बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. So as you move down the group, atomic radius generally increases. Atomic radius generally increase होगी, ionization energy generally decreases. So metallic character must increase. Metallic character क्या है? Increase करना चाहिए. तो देखिए बेटा, the metallic character firstly increases from boron to aluminium due to increase in the atomic radius. But in case of gallium and thallium, it does not follow the regular trend. रीजन आप जानते हैं क्योंकि बीच बीच में क्या है, बोरॉन से एल्यूमिनियम तक तो ये इंक्रीज करा, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम जाते जब है एटॉमिक रेडियस कम हो गया, गैलियम से आगे इंडियम पे जाते से एटॉमिक रेडियस फिर बढ़ गया. तो यानी कि उसके बाद क्या है कि हमारे पास रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ है एटॉमिक रेडियस और आयनाइज्ड एनर्जी में. इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर में भी हमारे पास रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होगा. तो फर्स्टली बोरॉन से एल्यूमिनियम तक, electropositive character increases due to decrease in ionization energy. और उसके बाद after that no regular trend, उसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं रहा. तो यहां बोरॉन के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं मेटालिक कैरेक्टर जनरली इंक्रीज करता है, तो सबसे पहले वाला जो होगा दैट इज नॉन मेटालिक. तो बोरॉन इज ए टिपिकल नॉन मेटल. बोरॉन कैसा है? नॉन मेटल है, यानी कि बोरॉन इज नॉन मेटालिक इन नेचर.
Next point, next periodic property, that is melting and boiling point. अब बात आती है कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर है. The melting and boiling point of group 13 elements are much higher than that of group 2 elements due to their strong forces of attraction between the atoms in solid and liquid state. यदि हम देखें तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रुप 2 की बजाय. यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, उन्हें तोड़ना डिफिकल्ट. सो group 13 elements have higher melting point and boiling point than group 2 elements due to stronger forces of attraction between atoms in solid and liquid state. कि भले सॉलिड स्टेट ने भले लिक्विड स्टेट ने दोनों ही केस में इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. और जो मेल्टिंग पॉइंट है the melting point decreases from boron to gallium and then increases up to thallium. अब यहां पर एक स्पेशल पॉइंट आता है और स्पेशल पॉइंट किसके बारे में है, बोरॉन के बारे में. बोरॉन हैज एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट. बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई है. रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स 3-dimensional स्ट्रक्चर. क्योंकि इसकी 3-dimensional स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट गैलियम के बारे में बड़ी एक्सेप्शन आती है. गैलियम हैज एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट. गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है. कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस. और वी नो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो यदि हम अपने हाथ में गैलियम को रखेंगे तो गैलियम उसमें भी मेल्ट हो जाता है. और द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप. और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर ये डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट. यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट. और ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें. वी नो जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स. इन सब की क्या है, NH2np1. It means all the group 13 elements have
2 plus 1, 3 electrons in their outermost shell, and they can use these 3 electrons in the bond formation. क्योंकि आपने पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ा है कि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से केवल वही बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे। तो आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब दे कैन यूज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में 3 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, इन सब की क्या होगी, +3। अब यहां एक टर्म आती है, द टर्म इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? नेम से इंडिकेट हो रहा है इनर्ट पेयर। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव हो जाना, पेयर का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा अनरिएक्टिव हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा। सो ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, a pair of electrons present in s atomic orbital reluct mean मना कर देता है, reluctance शो करता है to participate in bond formation, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है ड्यू टू क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है s atomic orbital। तो उस वजह से क्या है, only the p atomic orbital electrons will participate in bond formation and as a result oxidation state will decrease। So ध्यान से समझाओ, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? द रिलक्टेंस मीन मना कर देना ऑफ s atomic orbital electrons, the reluctance of a pair of s atomic orbital electrons of outermost shell to participate in bond formation due to increase in atomic size। ये कहेंगे विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू की बजाय। with the increase in atomic size is called inert pair effect। इसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज हुआ, एस एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट चलते थे उन्होंने बॉन्ड बनाने से मना कर दिया, तो उसमें कौन करेगा, सिर्फ पी एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा, इफेक्ट्स क्या होंगे? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट? यदि एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है? देयर आर टू इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट इज the lower oxidation state becomes more prominent or more stable than higher oxidation state। पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट विल बिकम मोर प्रोमिनेंट देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे ग्रुप में जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वहां पर दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी और उनमें से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, यानी कि कंपाउंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे हायर वालों के बजाय, और लोअर वाले मोर स्टेबल होंगे। सेकेंडली,
the compounds containing lower oxidation state becomes more stable than the compounds having higher oxidation state of same element। तो इस केस में सेम एलिमेंट की यदि दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है तो उनमें से लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड जो है हायर वाले के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हम इसे ग्रुप 13 पे अप्लाई करके दिखाते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में जो अभी हमने पढ़ रहे हैं हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स। वी नो देयर आर टोटल 5 ग्रुप एलिमेंट्स: बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जनरल आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 13 क्या है? ns2 np1। they have 3 electron in their outermost shell, so common oxidation state of these elements की क्या होगी? एक तो +3 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है। लेकिन अभी हमने पढ़ा विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द reluctance of s atomic orbital, reluctance of a pair of s atomic orbital electrons of outermost shell will take place। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, बोरॉन से हम थैलियम की तरफ जाएंगे, आउटरमोस्ट शेल के s एटॉमिक ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पड़ा है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा, कहेगा मैं नहीं कर रहा, पी वाला बोलेगा आप कर लीजिए। तो उस समय लास्ट वाले में क्या होगा? सिर्फ पी वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो पी वाले में क्या है? np1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, इंडियम या थैलियम हैं, इनके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएगी। तो इस ग्रुप में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी? 2 होंगी, एक है +3 और एक है +1। +3 का नॉर्मल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेस पर, और +1 जो है इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हमारे पास होगा क्या? मैंने आपको बताया इफेक्ट्स में क्या होगा? +1 oxidation state becomes more prominent than +3। यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के मुकाबले में ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। इसका मतलब इंडियम या थैलियम जो नीचे हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं, इनमें +1 वाले कंपाउंड जो हैं, या +1 वाली बात करें कि +1 के कंपाउंड जो हैं वो नेचर में +3 के मुकाबले में ज्यादा पाए जाएंगे। सेकेंडली द कंपाउंड्स containing +1 oxidation state becomes more stable than that of +3 oxidation state। कैसे? एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है why TlCl is more stable than TlCl3। TlCl is thallium chloride is more stable than thallium trichloride। तो अब यदि हम देखें इन TlCl, सबसे पहले इन TlCl ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ थैलियम इज, अब हम जानते हैं Cl का -1, तो TlCl पूरा न्यूट्रल है, तो Tl पर क्या है? +1। इन TlCl ऑक्सीडेशन ऑफ थैलियम कितना है? +1। एंड इन TlCl3 ऑक्सीडेशन ऑफ थैलियम क्या है? +3। तो आप जानते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ग्रुप में नीचे गए
एटॉमिक साइज इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, थैलियम में एस एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देंगे। तो थैलियम जो है +1 वाला ऑक्सीजन जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा +3 के बजाय। तो आप सीधा सा आंसर क्या देंगे, इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये किस वजह से है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है। एज ए रिजल्ट the two electrons present in outermost shell of s atomic orbital in case of thallium will reluct, मना कर देंगे या will refuse to participate in bond formation. That's why +1 oxidation state या thallium containing the compounds containing +1 oxidation state of thallium becomes more stable and therefore TLCl is more stable than TLCl3. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। थैलियम के बारे में आ गया, इंडियम के बारे में आ गया, and this is all about the periodic properties of group 13 elements. One last property, periodic property, this is reducing character. We know reduction means gain of electron and reducing agent क्या है, which has tendency to lose the electrons, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है ऑफ एनी एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। यदि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इन दिस केस बोरॉन एल्यूमिनियम, बोरॉन से एल्यूमिनियम पे गए, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज, लेकिन उसके बाद द रिड्यूसिंग कैरेक्टर firstly increases from boron to aluminium and then decreases from aluminium to gallium, उसके aluminium से gallium तक, sorry, aluminium to thallium, and that decreases from aluminium to thallium। किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन द ई नोट वैल्यू। एक तो ई नोट वैल्यू है, ई नोट वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो इंक्रीज करेगा। अब ई नोट वैल्यू से क्या फर्क पड़ना है, lower the value of E naught value, more will be the reducing character. It means reducing character जो है it is inversely proportional to E naught value. So E naught value है क्या यहाँ पे, this is the standard reduction potential. So जितना standard reduction potential increase करेगा उतना ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज। सो नीचे जाने पर ई नोट वैल्यू क्या है हमारे पास, बढ़ रही है, इस वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है यहां कम हो जाएगा। एंड दिस ई नोट वैल्यू, जो ये ई नोट वैल्यू है, इट फर्दर डिपेंड्स अपॉन तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं। वन इज डेल्टा एच सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे, डेल्टा एच हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी पे, एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इन तीनों पे डिपेंड करते हैं कि उसके बेस पर हम ई नोट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ई नोट वैल्यू यदि बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सो this is all about periodic properties of group 13 elements. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video,
and subscribe my channel Ultimate Science by Steve Kalda.